Okay, so hello students, welcome back. This is Suyaj Bajpayee, Suyaj Bhaiya here in front of you, right? So students, let me tell you something about myself. So I am Suyaj Bajpayee, right? I have completed my MTech from IIT-K, right? I have the teaching experience of about 6 years, in which 2 years I was on an academy, okay, and now I am working as a scientist in BARC, nuclear scientist. I am a nuclear scientist now, and this course I am creating for the students. This is a complete free course on YouTube. You will get it, right? And the motivation behind this course, the aim behind these courses is just to provide a quality and free education to all the students who don't have much amount of money, right? So chalo bhai, let us start with the without any further delay. So this lecture is complete study of electrostatic and electricity. Okay, you will get here 20 minutes lectures, right? Lecture series, and in these lecture series I will complete whole your 12th class electrostatic and electricity. Then we will complete whole 12th class courses, right? So without any further ado, let's start. So before starting, let me tell you something here. Yeah, in electrostatic, the first thing we have to study here is charge. Okay, so what do you mean by charge? What is charge? Okay, students, what is charge? So this should be the first question in your mind. So let me give you a basic experience first about the charges, right? So students, there are two different color balls you can see here. This is red color ball, this is blue color ball, right? So the blue color ball have been rubbed with some cat fur, okay? कैट फर, ये जो ब्लू कलर की बॉल है इसको भाई किसी रुई से या फिर कैट के फर से रब किया गया, जिसकी वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसको किसी दूसरे क्लोथ से रब किया गया जिसकी वजह से इस पर निगेटिव चार्ज आ गया. एक्चुअली चार्ज क्या है तो वो आपको इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आएगा. जब आप इन दोनों बॉल्स को एक जगह हिंज करके छोड़ देते हो तो ये क्या होता है, ये दोनों पास आने लगती हैं, है ना, ये दोनों पास आने लगती हैं, ठीक है. और अगर आप ये जो रेड कलर वाली बॉल है, मतलब जो डिफरेंट क्लोथ से रब्ड बॉल है, उन दोनों को अगर एक साथ आप हिंज करके छोड़ते हो तो ये दूर जाने लगती हैं, ठीक है. और जो कैट फर से रब्ड करी हुई बॉल है, अगर आप उन दोनों को एक साथ हैंग करके छोड़ते हो तो भी वो दूर जाने लगती हैं. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉल जो ब्लू वाली है ये कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रही है. इट हैज़ सम डिफरेंट प्रॉपर्टी, ओके. और रेड कलर की प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट है, डिफरेंट प्रॉपर्टी, क्लियर, प्रॉपर्टी, राइट. मतलब रेड कलर वाली जो बॉल है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी है, जो ब्लू कलर वाली बॉल है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी है ना. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाली बॉल मिल रही हैं तो वो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, और जब सेम सेम प्रॉपर्टी वाली बॉल को हम रख रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे को रिपल कर रही हैं. थिंक, जब सेम प्रॉपर्टी वाली बॉल रख रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे को रिपल कर रही हैं, ठीक है ना. सो फ्रॉम हेयर द कॉन्सेप्ट केम दैट अपोजिट अट्रैक्ट्स, राइट. सो ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करती है, दिस प्रॉपर्टी इज योर चार्ज, राइट. सो अगर अब कोई आपसे पूछे व्हाट डू मीन बाय चार्ज, ओके, व्हाट डू मीन बाय चार्ज, देन व्हाट यू विल से, सो चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, okay, just think, by which it can attract or repel any other material, right, material or object. Clear, students? Yeah. Sorry. Okay. So from here we can conclude that like charges repel each other and unlike charges attract each other. Okay, so from here the concept came, opposite attracts. Okay, students, means positive negative will attract each other, positive will repel each other, negative will repel each other. Okay, so I think this thing is very much clear to all of you. Now let's come back. Now the concept of charge is very much clear to all of you. Okay, so in this lecture now we'll proceed to our next topic, that is Coulomb's law. ठीक है भाई, so let me read this for you. All bodies consist of atoms which contains equal amount of positive and negative charge.
So atom is basically neutral, right? So our atom is neutral. Okay, it has equal amount of positive and negative charge, clear, in form of protons and electron. Proton is positive and electron is negative, right, respectively. The number of electrons being equal to the number of proton in an atom, so the atom is neutral. The electron are removed from a body, it gets positive charge, clear. So एक एटम है भाई, एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन इसके आउटसाइड रिवॉल्व करता है इन शेल्स, राइट. But this atom is neutral. Atom is always a neutral body, right? Means number of protons will be equals to number of electrons in an atom, right? This is what you know from chemistry. ठीक है भाई. अब हम आगे बात करते हैं कि कितने चार्ज होते हैं, ठीक है भाई. So charge Q is equals to, let me define this here, yeah. So students, our Q will be equals to N E, where E is your electronic charge, or you can say charge on an electron, clear. So charge on an electron is E, and what is this equals to? It is simply 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb, right? So this is the value of E, and what is this N? N is the elementary number, right? Means suppose if someone says that a body has 2 elementary charge, means this N will be equals to 2, 3, 4, right? So this Q will be equals to Ne, right? I hope this thing is very much clear. If from chemistry we can say, if this is your sodium ion, then it shows ये इसके ऊपर कितना चार्ज दिख रहा है, +1, means N will be equals to 1 here, right? So what is charge? Q is equals to Ne, right? So simply 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb charge is showing on this sodium ion, ठीक है. So that's all about charge. This is all about charge what we have discussed. So now we'll see the ways of charging a body. Okay, so now we'll see the ways of charging body, how to charge a body, ठीक है. So there are 3 to 4 different ways. So charging by friction, we'll see charging by induction, we'll see charging by conduction, ठीक है. And so these are the number of ways to charge any body, right? So ways to charge any body. So first way is by friction. You have already used this way, okay, in school times. You know what, just remember, आप देखो भाई, स्कूल में कुछ लोग गेम खेलते हैं, कुछ कागज के टुकड़ों को सीट पे डाल देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को, है ना, इस तरीके से, ठीक है. और जिसने नहीं खेला भैया वो खेल लेना जाके, ठीक है. और एक स्केल होता है उनके पास, स्केल है ना, सिंपल प्लास्टिक स्केल. तो उसको अपने हेयर में रब करते हैं. जब रब करते हैं तो जब इस स्केल को इन कागज़ के टुकड़ों के ऊपर लेके आते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये उड़ने लगते हैं भाई, है ना. दे स्टार्ट फ्लाइंग, है ना भाई. कहते हैं जादू हो गया. तो एक्चुअली वो जादू नहीं है, वो फिजिक्स का जादू है ना. तो होता क्या भाई उसमें, तो व्हेन यू रब दिस स्केल तो जब भी, एक मिनट, तो जब भी आप रबिंग करोगे, है ना, तो रबिंग से क्या होता है, सरफेस, जैसे मान लो हमने इस सरफेस को मान लो हमने, ये जो सरफेस है, एक मिनट, हाँ, इसको मान लो हमने रब किया, तो क्या हुआ, हमने इसको रबिंग की वजह से एक कुछ हीट ट्रांसफर करी. उस हीट ट्रांसफर की वजह से जो सरफेस के एटम्स होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देंगे. बिकॉज ऑफ दिस सरफेस विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्लियर, ठीक है. और अब जब इस पॉजिटिव चार्ज सरफेस को आप इस कागज़ के ऊपर लेके आओगे तो भैया वो अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है, क्योंकि इस पर कुछ नेगेटिव चार्ज होगा, ऑब्वियस, राइट, क्लियर. सो दैट्स ऑल अबाउट इट. So by charging, by friction, you can say, by friction you can charge any body, right? Means simply by rubbing. So when two bodies are rubbed together, a transfer of electron takes place from one body to another. Why? Because of rubbing energy, right? Because of energy, heat developed, right? So electrons from one body transfer to another body. Clear? The body from the electrons, which electrons have been transferred, इज लेफ्ट विद एन एक्सेस पॉजिटिव चार्ज. जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भैया वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो बॉडी हो जाएगी आपकी नेगेटिवली चार्ज, ठीक है. द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस बाय रबिंग आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड. तो भैया मान लो हमने इस बॉडी को एक क्लोथ से रब किया, तो क्लोथ पे नेगेटिव चार्ज मान लो आ जाएगा, और हो सकता है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या फिर उल्टा भी हो सकता है
कि भैया क्लोथ से पॉजिटिव चार्ज निकल के बॉडी पे चला जाए, है ना। तो ये मतलब है कि ये दोनों अपोजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, है ना, ये क्लोथ और ये बॉडी दोनों ही चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। या सो देखो लिखा है, व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क इट लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन एंड गेट पॉजिटिव चार्ज while the piece of silk acquire equal negative charge, ठीक है। अगेन an ebonite rod acquires a negative charge if it is rubbed with wool fur, है ना। the piece of wool acquire equal positive charge, ठीक है। तो भैया पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा, रबिंग से चार्ज ट्रांसफर होगा, राइट, फ्रिक्शन से चार्ज ट्रांसफर होगा। सो दिस इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। अगेन अनदर मेथड फॉर चार्जिंग इज इंडक्शन। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्शन मीन्स, अभी हम देखते हैं, मतलब इंडक्शन मीन्स चार्ज induced, clear, induction means charge induced, ठीक है। तो देखते हैं भाई ये कैसे इंड्यूस्ड होता है चार्ज, है ना। तो देखो भाई इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक इससे पहले हमको पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज कंडक्टर, क्लियर, व्हाट इज इंसुलेटर। ओके, सो कंडक्टर is a substance which conducts electricity, okay, which conducts charges, ठीक है, जिसमें चार्जेस फ्लो कर सकें, क्लियर, which has free electron, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है कंडक्टर के पास, जिसकी हम कंडक्टर के बारे में आगे और देखेंगे ब्रीफ में, ठीक है, अभी मैं शॉर्ट में बताता हूँ इधर, ठीक है। तो कंडक्टर हैव द टेंडेंसी टू इन विच चार्ज कैन फ्लो, क्लियर, और चार्ज कैन फ्लो इन कंडक्टर। इंसुलेटर विच कैन नॉट कंडक्ट चार्जेस, ओके, कैन नॉट कंडक्ट चार्जेस, मतलब भैया इसमें चार्जेस फ्लो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जहां रख दोगे वहीं बने रहेंगे। तो ये एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, ठीक, और इट ऑल्सो हैज फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्री है भाई, मूव कर सकता है, क्लियर, इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन द कंडक्टर। सो व्हाट विल हैपन हियर, तो भैया ये पहले मान लो, पहले की पिक्चर में दिखाता हूँ इधर इस तरीके से इंडक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये आपका कंडक्टर है, दिस इज योर कंडक्टर, है ना, और ये इंसुलेटर है नीचे, मतलब इसमें कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, और ये एक दूसरी पॉजिटिव चार्ज रॉड है जो हम इस कंडक्टर के पास लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं क्या होगा भाई इसमें। तो फर्स्ट पिक्चर, लेट मी शो यू द फर्स्ट पिक्चर हियर, क्लियर, ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, और बेटा ये आपका इंसुलेटर नीचे वाला, ठीक है, या इट इज़ लाइक दैट, ओके। और अभी इसमें कोई चार्ज नहीं था, राइट नाउ इन ऑन दिस कंडक्टर देयर इज नो चार्ज, इट इज़ नॉट चार्ज, यू कैन सी, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप एक चार्ज रॉड लेके आओगे, पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आओगे, तो क्या होगा भैया, ये कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन कैन मूव, तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन जाएंगे, जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इस कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर जाने लगेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर जाने लगे तो इधर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, चेक करो, है ना। तो ये हो गया इंड्यूस्ड, अभी ये इंड्यूस्ड हो गया, लेकिन जैसे ही अभी आपने अगर रॉड हटा दी तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन पीछे आएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, दोनों मिक्स होके फिर से इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, चेक करो, है ना भाई। तो अभी क्या होगा, अभी इस वजह से हमने क्या किया, अभी हम बस रॉड को लाए हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से एक और कंडक्टिंग वायर लेके अर्थ को ज्वाइन कर देंगे, जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू अर्थ में चला जाएगा। देखो ये इंसुलेटर है, इससे कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी चार्ज है वो इस जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से अर्थ को की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर आपने लगा दिया इधर, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज अगर ट्रांसफर हो गया तो पिक्चर कुछ ऐसी दिखेगी, है ना, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, ठीक। तो क्या होगा, अब आपने क्या किया, थोड़ी देर बाद इस रॉड को भी हटा दिया, पहले इस इंसुलेटर को, इस कंडक्टर को हटाया, ठीक है। तो देखो पहले हमने इस कंडक्टर को हटा दिया, राइट। सो फर्स्ट दिस इज इंसुलेटेड, अर्थिंग किया हमने, अर्थिंग करने की वजह से क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज आपका नीचे ग्राउंड में आ गया, अब रिमूव कर दिया अर्थिंग को, ठीक है। अब हमने इस रॉड को रिमूव कर दिया, तो जैसे ही आप इस रॉड को रिमूव करोगे तो ये नेगेटिव चार्ज अब इधर नहीं रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, हैंस दिस बॉडी विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, क्लियर। नाउ द पॉजिटिव रॉड हैव बीन रिमूव्ड, इस रॉड को रिमूव कर दिया। तो क्या आपने इसमें कोई चार्ज कंडक्ट किया, क्या कोई चार्ज ट्रांसफर किया क्या एक्सटर्नली, नहीं, आपने क्या किया, इस चार्ज इंड्यूस्ड किया, फिर एक चार्ज को बाहर निकालिए। सो दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। इसी तरह से दूसरा मेथड है एक चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो भैया इसमें क्या होता है, तो अब इसमें हम कंडक्शन करेंगे, अब इसमें देखो क्या हो रहा है। तो ये एक अनचार्ज स्फीयर था, ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था, ठीक है। तो अब अगर हम इन दोनों को कॉन्टैक्ट में ले आए तो क्या होगा तो क्या होगा भैया, दोनों क्योंकि कंडक्टिंग है, ठीक है। अगेन दिस इज इंसुलेटेड, ठीक है, बट द स्फीयर इज कंडक्टर, स्फीयर इज कंडक्टिंग, ठीक है।
तो क्या होगा, जब आप इन दोनों कंडक्टिंग स्फीयर्स को ज्वाइन करोगे तो इसका चार्ज इसमें जाएगा, है ना, क्लियर, क्योंकि चार्ज कंडक्ट कर सकता है, भैया चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा ना, तो वो एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना, रिपेल करेगा एक दूसरे को, तो भैया दोनों में डिस्ट्रीब्यूट है। अगर ये दोनों स्फीयर्स आइडेंटिकल होंगे तो चार्ज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कोई स्फीयर मान लो बड़ा हुआ तो उस पर ज़्यादा चार्ज चला जाएगा, सिंपल है ना भाई। तो ये आइडेंटिकली आपने इनको क्या करा, जब अटैच किया है ना, आपने इनको कॉन्टैक्ट, ये सही से बनाया नहीं गया फिगर, ये दोनों कॉन्टैक्ट में होंगे इधर, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर आपने कॉन्टैक्ट से हटा दिया, है ना। तो देखो इनिशियली ये स्फीयर अनचार्ज था, लेकिन फाइनली ये चार्ज हो गया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें चार्ज कंडक्ट हुआ है, एक से दूसरे में कंडक्ट हुआ है ना। सो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो ये कुछ मेथड्स हैं भाई हमारे चार्जिंग के, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में समझ लिया, हमने ये देख लिया कैसे चार्जिंग हो सकती है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन हमने समझ लिया, ठीक है। नाउ विल डिस्कस द सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ओके, सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, charge can be transferred from one body to another, charge can be transferred from one body to another, but charge is conserved, right, clear. Electric charge can neither be created nor can be destroyed, it is always conserved, this is known as principle of conservation of charge. अभी हमने कंडक्टर्स की बात करी थी, ठीक है। सो चलो अब हम कंडक्टर्स की और अच्छे से थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग मोर अबाउट द कंडक्टर्स, ओके। तो भैया ये आपका एक कंडक्टर है ना, मेटल्स आर जनरली कंडक्टर्स, क्लियर। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं पहले हम ये बात, और भी कंडक्टिंग नेचर के मटेरियल्स होते हैं, सिर्फ मेटल्स ही कंडक्टर नहीं है, क्लियर। मेटल्स आर एग्जांपल ऑफ कंडक्टर, मेटल्स आर एग्जांपल ऑफ कंडक्टर, ओके। सो कंडक्टर्स की बात करते हैं। तो भैया कंडक्टर्स में क्या होता है, इट हैज़, सबसे पहले तो इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। और वी कैन से सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि एकदम फ्री होते हैं। तो मतलब जैसे मान लो हमने कोई मेटल उठा लिया सोडियम, तो सोडियम क्या बनाएगा भैया, Na+ बना लेता है और अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा भैया, ये सोडियम का कर्नल हो गया, दिस इज कॉल्ड कर्नल नाउ, ओके। और ये उसका हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन, डॉट से दिखा दिया। इस तरह के बहुत सारे एटम्स होंगे और इस तरह से बहुत सारे कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट, जो कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है, बहुत सारे होंगे, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड एकदम, ठीक है। चेक करो भाई, है ना, इस तरीके से बहुत सारे होंगे। तो ये एक आपका कंडक्टर बिहेव करेगा, राइट। सो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन जिगजैग मोशंस, ठीक है, ये जिगजैग मोशन में होंगे, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, लेकिन इसमें कोई नेट करंट नहीं होगी, मतलब नेट फ्लो नहीं होगा, क्लियर। दिस इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही आप इसमें कुछ इधर पॉजिटिव चार्ज रख दिया मान लो आपने, और इधर नेगेटिव चार्ज रख दिया, जैसे ही ऐसा आपने किया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है उनकी टेंडेंसी इधर मूव करने की हो जाएगी, है ना। तो इधर साइड नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इधर साइड पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो, जैसा कि हमने देखा इंडक्शन में, है ना, क्लियर। लेकिन आपने इस पॉजिटिव चार्ज को टच नहीं कराया, टच कराते तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, लेकिन टच तो हमने कराया नहीं, है ना। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कंडक्टर्स, है ना। कंडक्टर्स विच अलाउ, इन विच चार्ज कैन कंडक्ट इन कंडक्टर, ठीक है भाई। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर। नाउ इंसुलेटर, द मटेरियल विच डोंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास और डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, ग्लास, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, राइट। सो नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब हम बात करेंगे। अभी तक हमने बात कर ली भाई चार्ज की, हमने बात कर रखी है कि कैसे चार्जिंग होती है, ठीक है, हाउ कैन वी चार्ज अ बॉडी। नाउ विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन मीन्स नाउ विल टॉक अबाउट द कूलॉम्स लॉ, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने कूलॉम्स लॉ की। तो भैया आपने देखा होगा कि आपने ग्रेविटी में पढ़ा होगा क्या, कि दो हेवनली बॉडीज़ हैं, अगर वो r डिस्टेंस पे हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। और वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे अगर इनके बीच की डिस्टेंस r है और इनका मास m1 और m2 है। सो दिस फोर्स विल बी इक्वल्स टू g ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट्स m1 m2 बाय r², ठीक है। मतलब जो इनके बीच सेंटर टू सेंटर जो मासेस होंगे उनके बीच की जो सेंटर डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये फोर्स, ठीक है। मतलब जैसे जैसे ये r बढ़ेगा, ये बॉडीज दूर जाएंगी, ये फोर्स बहुत तेज़ी से कम होगा, है ना। जैसे जैसे m1 m2 का वैल्यू बढ़ेगी, मतलब मासेस बढ़ेंगे, ये फोर्स बढ़ेगा, है ना। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन ग्रेविटेशन। सो नाउ सिमिलरली वी हैव कूलॉम्स लॉ हियर, दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ वी विल स्टडी द कूलॉम्स लॉ। तो भैया दो चार्जेस हैं, ठीक है, r डिस्टेंस पे हैं Q1 Q2।
तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा, देखो ग्रेविटी में क्या होता था, ग्रेविटी में सिर्फ अट्रैक्शन होता था, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे, अगर सेम चार्ज है तो रिपल करेंगे, ठीक है। पर जो भी अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा दैट फोर्स विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट के, यहाँ पे जी आता था, यहाँ पे के आएगा, अभी मैं बताऊंगा ये के क्या होता है, ठीक है। के टाइम्स Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, सिमिलर है ना भाई, देखो ठीक है। अब बात करते हैं ये के क्या है, व्हाट इज दिस के, सो दिस इज योर के, ओके। इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज योर के, ये के है आपका, ठीक है, कैपिटल के। मैं जो कांस्टेंट बोल रहा हूँ मैंने जनरली लिख दिया, इसको कोई के बोलता नहीं है, मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया। एक्चुअली ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना। जहाँ पे इसकी वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, और यूनिट आप इसकी निकाल सकते हो, ठीक है। ये फोर्स है, इट इज़ न्यूटन, इट इज़ मीटर स्क्वायर, इट इज़ कूलॉम स्क्वायर, राइट। सो इट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलॉम स्क्वायर, चेक, ठीक है भाई। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ठीक है, इन एयर। अब मान लो आपने इस चार्ज सिस्टम को उठाया और पानी में डाल दिया, मेरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना, अब यहीं से आपकी फिजिक्स शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपने इस चार्ज सिस्टम को उठाया और पानी में रख दिया, तब क्या होगा, थिंक, देन व्हाट विल हैपन। अगर आपने इस चार्ज सिस्टम को उठाया और पानी में रख दिया तो आपका ये जो के, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। नाउ दिस विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट का मतलब है इन एयर, ठीक है। नाउ दिस विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन, एंड योर एप्सिलॉन इज नथिंग बट सम कांस्टेंट स्मॉल के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, ओके। दिस एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज permittivity of free space, permittivity of free space, clear। this epsilon is known as permittivity of medium, ठीक है। तो फिर से एक बार बोलता हूं मैं, ठीक है, समझने की कोशिश करना, क्लियर। नाउ लेट मी राइट डाउन दिस। सो this is your force, all right, this is your force, F is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये अट्रैक्टिव होगा रिपल्सिव होगा, ये हमको पता चलेगा कि भैया चार्जेस कैसे हैं, अगर सेम चार्ज हैं तो रिपल्सिव, अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्टिव, राइट। सो द वैल्यू ऑफ दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज दिस इन एयर, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप निकाल सकते हो, आराम से निकालोगे तो आएगी 8.85 × 10⁻⁻12 करके कुछ आएगी, चेक कर लेना, ठीक है। सो दिस इज योर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्लियर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स ये बताओ मुझे, अगर आपने इस चार्ज सिस्टम को उठा के पानी में डाल दिया तो क्या होगा, इनके बीच का फोर्स कम होगा कि ज़्यादा होगा, बताओ भाई। बिल्कुल सही है ना, फील आ रहा है कि भैया फोर्स है इन दोनों के बीच में, जो अट्रैक्टिव फोर्स है तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो फोर्स अगर कम हो जाएगा तो वो फोर्स कितना होगा, नाउ दैट फोर्स विल बिकम F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आएगा, है ना, और बाकी Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। भाई जब एयर थी तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर आ जाएगा, अब कोई और मीडियम अगर चार्जेस के बीच में तो एप्सिलॉन आएगा, विच इज परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, चेक करो भैया, ठीक है, बात ठीक है, वेरी गुड। सो अगर आप सही से देखोगे तो ये फोर्स कुछ नहीं है और कुछ नहीं है, ये फोर्स और कुछ भी नहीं है, बल्कि 1/4 पाई, व्हाट इज दैट, एप्सिलॉन इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स स्मॉल के, क्लियर। दिस के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, राइट, इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। देखो बाकी सब वही है, ठीक है, ये फोर्स मीडियम का है, ठीक है। तो अगर आप सही से देखोगे तो भाई जो मीडियम का फोर्स है, जो फोर्स है मीडियम में, मतलब ये मीडियम है, कोई मीडियम हो गया, पानी हो सकता है। सो द फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन द चार्जेस हैव बीन प्लेस्ड इनसाइड द मीडियम इज k times less, small k times less than the force in free space, where this k is called dielectric constant of the medium. Just write down this dielectric constant of medium, constant of medium।
तो हर मीडियम का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, हम कह सकते हैं कि एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 1 होता है। क्लियर, वी कैन से दिस के एयर इज इक्वल टू 1, चेक, ठीक है। तभी तो भाई के, अगर आप यहाँ पे के को 1 रख दोगे तो ये पिछला वाला फॉर्मूला फिर से आ जाएगा, ठीक है, चेक करो, है ना, ठीक, यू कैन गेट दिस फॉर्मूला अगेन, राइट। सो आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है भाई। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। तो भैया अगर अगर आपका चार्ज पार्टिकल एयर में है तो फिर तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे भाई, 1/4 9 टू 10⁹, ठीक है, डायरेक्टली दिस। बट अगर चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में तो हमको इस तरीके से चलना पड़ेगा, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन होगा, एंड दिस एप्सिलॉन इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट के इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अगर मीडियम दिया है तो इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आपको दिया जाएगा, लेट इट टू बी 1 और 2, इस तरह से दिया जाएगा, है ना। तो भैया जितना भी दिया जाए 3 4 उतना टाइम से आपका जो फोर्स है, जो मीडियम में फोर्स लगेगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर यू कैन डायरेक्टली से दिस इज फोर्स ऑन द मीडियम विच इज 1/k टाइम्स द फोर्स इन एयर, विच इज 1/4 टाइम्स 1/k टाइम्स द फोर्स इन एयर। क्लियर, चेक। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली भैया अपने कूलॉम्स फोर्स की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है, clear। So just note it down what I have taught here in this lecture, and now we will go to the next lecture in the next class. Thank you all of you, thank you.